صلوا عليه وآله أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں ہم نے نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ، اس پر ہم نے گزارش کی اور یہ عرض کیا جب تک نمازی اپنا رخ، اپنا چہرہ قبلے کی جانب نہ کر کے نماز پڑھے تو اس کی نماز فاسد۔ اور اس سے متعلق ذیلی جتنے مسائل تھے کوشش کی گئی کہ عام آدمی کی ضرورت کے مطابق جو ہیں انہیں بیان کیا جائے۔ آج نماز کی ایک اہم شرط جسے وقت کہتے، یہ نماز کی چوتھی شرط ہے۔ جب تک وقت نہ پایا جائے اس وقت تک اس وقت کی نماز نہیں ہوگی۔ پانچ نمازوں کے 5 اوقات یہ متعین ہے۔ آج کل جو نظام گھڑیوں کا ہے، اس سے پہلے لوگ اپنا تخمینہ سورج کے حساب سے نکال لیا کرتے تھے، اور اسی طرح جس زمانے میں بھی مسائل پیدا ہوئے اس زمانے کے علماء نے اس وقت کے اعتبار سے اس کا حل نکالا۔ بعض ایسے علوم تھے اس زمانے میں کہ ستاروں کو دیکھ کر یہ جان لیا کرتے کہ سحری کا وقت کب شروع ہوا اور صبح کب طلوع ہوئی، بلکہ ستاروں سے قبلے کا تعین بھی ممکن تھا کہ کون سا ستارہ کس جانب ہو تو قبلے کی سمت کیا ہونا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے دور میں جب گھڑیاں ایجاد ہو گئیں تو اس اعتبار سے علم توحید کے ماہرین نے گھڑیوں سے نماز کے اوقات کو منسلک کر کے اور اس امت پر بہت بڑی مہربانی فرمائی۔ اب یہ گھڑی کو دیکھ کر ایک کیلنڈر وضع کر دیا گیا کہ صبح کا وقت کب شروع ہوگا، طلوع کب ہے، زوال کب ہے، ظہر کب، عصر کب، مغرب کب، عشاء کب، یہ متعین ہو گیا۔ تو اس سے بہت بڑی ضرورت پوری ہو گئی اور عوام کے لیے بے شمار مسائل حل ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چند مسائل کا وقت کے بارے میں جاننا ضروری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو کتابم موقوتا اس کے مقررہ وقت میں فرض کیا۔ ایسا نہیں کہ فجر کی نماز ظہر میں پڑھ لی جائے، ظہر عصر میں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو نماز آپ پڑھیں اس کا وقت پائیں تو ویسی صورت میں وہ نماز اس پر اس وقت کے اندر پڑھنا فرض ہے۔ اس کا جاننا عام نمازی کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر اسے اوقات کا نظم، تمام نمازوں کے اوقات اور اس کا نظم اگر اس کے ذہن میں رہے تو نماز کی حفاظت بھی ہوگی اور اس کی جماعت بھی، جو نہ جاننے کی وجہ سے مسائل چھوٹ جاتی ہے، اس کی حفاظت بھی ہوگی۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اور آپ 4:30 بجے نماز عصر ادا کر رہے ہیں، ہم نے ظہر پڑھی۔ ایک عام آدمی جو اس نظم سے واقف نہ ہو، وہ اپنی گھڑی میں دیکھے کہ 3 ساڑھے 3 بج گئے، وہ از خود ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تقریباً آدھ گھنٹہ یا پون گھنٹہ گزر گیا تو آدمی خود ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کی ظہر قضا ہو گئی۔ اسی طریقے سے عصر کی نماز میں پڑھنے کے بعد سورج غروب ہونے میں کچھ وقت ہو، خود ہی آدمی طے کر لیتا۔ مغرب کی نماز پڑھ کے
10-15 या आध घंटा गुजर जाए, अंधेरा हो जाए, तो आदमी कहता है कि अब मगरिब की नमाज जो है वो कज़ा हो गई। और उमूमन अवाम में तो ये मशहूर है कि रात के 12 बज जाएं तो जवाल शुरू हो जाता है और इशा की नमाज कज़ा हो। हालांकि रात में सिरे से कोई जवाल का वक्त ही नहीं। जाहिर है कि ये सारा जो निजाम है ये शमसी निजाम है और ये तो तय है कि रात में सूरज होता ही नहीं जो जवाल। लेकिन मसाइल ना जानने की वजह से नुकसान क्या होता है, आज खुद आदमी समझता है कि ये नमाज कज़ा हो गई, लिहाजा वो नमाज ही छोड़ देता है। अब हम इसका नज़म बताते हैं, फजर कब शुरू होकर कब खत्म होता है, और इसी तरीके से ज़ोहर, असर, इन पांचों नमाजों के औकात और इनकी मुख्तलिफ तारीफ। मोहतरम हजरात, नमाज फजर, जब नमाज का फजर यानी सुबह सादिक जब तुलू होती है, हर मौसम में सुबह सादिक से लेकर के सुबह तुलू तक ये वक्त तकरीबन 1 घंटे 35 मिनट जरूर रहता। 1 घंटे 18 मिनट से लेकर 1 घंटे 35 मिनट तक का इसका दौरानिया है। यानी सुबह सादिक से सूरज तुलू होने तक का कम से कम वक्त 1 घंटा 18 मिनट है, लेकिन वो भी हमारे बिलाद में, मसलन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पूरा हिंदुस्तान तकरीबन जो इस पट्टी पर है या इसके मुंसलिक जो भी ममालिक है, इनमें कम से कम 1 घंटे 18 मिनट रहता है और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 35 मिनट रहता है। ये मैंने इसलिए अर्ज किया, मिसाल के तौर पर आप कहीं पाकिस्तान के किसी शहर में और आप रोजा रखना चाहते हैं, अगर आपको ये मालूम हो कि इस शहर में सूरज कितने बजे तुलू हो रहा, अगर उसका तुलू और गुरूब तो आम महकमे मौसमियात वाले भी इस पर छाप कर और अखबारात में भी आता है कि सूरज इतनी बजे तुलू इतनी बजे गुरूब होगा। कोई शख्स अगर रोजा रखना चाहे और उसे पता नहीं कि सहरी का वक्त क्या है, वो इसे मामूल बना ले कि सूरज निकलने से 1 घंटा 40 मिनट पहले वो सहरी से फारिग हो जाए, क्योंकि 35 से ज्यादा वक्त नहीं रहता। तो इसमें एहतियात है, अगर कोई आदमी वक्त नहीं जानता तो इसको अपनाए। तो ये वक्त कम से कम 1 घंटा 18 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे 35 मिनट होता है सुबह सादिक से सूरज निकलने तक। अब जब फजर तुलू हो जाए तो तुलू होने के बाद नमाज फजर कब पढ़ेंगे? हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा यह है, और इसी पर तमाम दुनिया के उलमा फतवा देते हैं कि जब सफेदी जाहिर हो जाए, या यूं आम फहम लफ्ज में कह दें कि चलते फिरते में एक दूसरे की शक्ल को पहचान लें, ये हमारे इमाम के नजदीक मुस्तहब वक्त है। इसका यूं तखमीना लगा लें आप कि नमाज फजर आपने पढ़ी, खुदा न खास्ता ये मालूम हुआ कि इमाम बेवुजू था, नमाज लौटानी, या नमाज पढ़ने के बाद नमाज फजर ये मालूम हुआ बाद में कि आपका कपड़ा नापाक था, नमाज नहीं हुई, या आप बेवुजू थे और भूलकर आपने नमाज पढ़ ली, तो इतना वक्त हो कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद उसी वक्त में अपनी नमाज को दोहरा लिया जाए। सूरज तुलू होने से पहले इतना वक्त होना चाहिए। अब इसका तखमीना एक औसत जो है वो तुलूए फजर से कम 20 मिनट पहले तक जमात खड़ी हो जाए, या कम से कम 25 मिनट। और ये लोग मस्जिद के अइम्मा और मस्जिद के ओहदेदारान अब खुद अपना वक्त मुकर्रर कर लेते, कहीं तुलूए फजर से 25 मिनट पहले हो जाती, कहीं आध घंटे पहले हो जाती और कहीं 20 मिनट पहले। मुख्तसर फार्मूला ये है कि खुदा न खास्ता नमाज अगर फासिद हो जाए तो कम से कम कज़ा नहीं हो, लौटाने का वक्त उसी दौरान मौजूद हो, ताकि सूरज तुलू होने से पहले नमाज का इयादा और नमाज को लौटा लिया जाए। एक बात ये जो आपने देखा कि आजकल हम नमाज फजर बहुत जल्दी पढ़ते, अगरचे इमाम शाफी रज़ियल्लाहु अन्हु का मजहब यह है
कि उनके नजदीक नमाज फजर को पहले वक्त में पढ़ा जाए, उनके यहाँ ये मामला। अच्छा, अब यहाँ उलमा रमजान में फजर इसलिए पहले पढ़ा देते हैं कि अब किसी मुफ्ती या आलिम का काम यह है कि वो अवाम की जरूरियात और अवाम की नब्ज पर भी हाथ रखे। अब मुझे बताइए, आप सहरी खाएं और सहरी खाने के बाद आफताब के तुलू होने में 1 घंटे 35 मिनट बाकी हैं, ठीक है साहब। अब आपने चलिए माना कि सहरी खाने के फौरन बाद सुन्नतें पढ़ ली। अब 1.25 घंटे कोई आदमी या 1 घंटे कोई आदमी नमाज का इंतजार करे, जाहिर हम अपनी कमजोरियां जानते, तो उलमा ने देखा कि तो सब सो जाएं, या कम से कम नमाज तो नहीं छोड़ेंगे मगर घर में पढ़ के सो जाएं। अब क्या होगा कि वाजिब तर्क हो जाएगा, जमात के सवाब से महरूम हो जाएंगे। तो क्या किया गया कि रमजान में लोगों की सहूलत के लिए कि नमाज हो भी जाए, नमाजी ज्यादा हो, कसीर जमात हो, लोगों की जमात बच जाए, तो ये तरीका फिर उलमा ने रखा कि रमजान के दौरान नमाज फजर जल्दी पढ़ा दी जाती, और इसमें शरन कोई इतना हरज भी नहीं। हमारे इमाम ने जो फरमाया कि उजाला हो जाए उस वक्त नमाज अदा की जाए, तो ये भी उनके नजदीक मुस्तहब है, ये मुस्तहब। तो हमने मुस्तहब को तो छोड़ा, लेकिन एक भलाई तो हासिल कर ली कि लोग कसीर तादाद में जमात के साथ नमाज अदा कर लेते हैं, लेकिन असल वक्त जो है मुस्तहब वो बात का है। सूरज तुलू होने का जो वक्त है, एहतियातन घरों में नमाज पढ़ने वाले हर शख्स के लिए जरूरी है कि कैलेंडर बाजार में आजकल मिलते उसे नस्ब कर लें और पूरी निगरानी रखें कि सूरज कब तुलू होता है, ताकि नमाज फजर सूरज तुलू होने से पहले अदा कर ली जाए। और इसमें उलमा फरमाते हैं कि नमाज एक अजीम शान फरीजा है, इसलिए 2-4 मिनट का वक्फा उसमें जरूर रखें। मसलन सूरज तुलू होने से 2-4 मिनट पहले अपनी नमाज से फारिग हो जाएं। ये इसलिए कहा गया, उमूमन आप देखिए कि आपकी घड़ी में या मस्जिद की घड़ी में 2-1 मिनट का फर्क निकल आता है। आप रेडियो या टीवी में जो वक्त है उसमें आप अपनी घड़ी को देखिए, 1-2 मिनट वो आगे होगी या आप आगे हों। इसलिए अपने नमाज और रोजों को बचाने के लिए 2-4 मिनट की एहतियात बहुत जरूरी है, ताकि आप अपने वक्त में नमाज से फारिग हो जाएं। तो अब देखिए, सुबह सादिक से लेकर तुलुई आफताब तक नमाज फजर का वक्त जो है वो मौजूद है। इसके बाद अब आइए, जो हजरात जिन्हें अल्लाह ने तौफीक दी वो इशराक भी पढ़ते हैं। अब इशराक का वक्त कब शुरू होगा? जैसे फर्ज कीजिए कि सूरज अगर 6 बजे तुलू हो रहा, तो 6 बजने में आप 20 मिनट और मिला, अब ये इशराक का वक्त शुरू हो गया। जब धूप में तेजी आ जाए, देखा होगा आपने कि जब धूप जो है वो बहुत धीमी होती है, जिसमें गर्मी नहीं होती, चाश के वक्त में जब सूरज अच्छी तरीके से निकल आए, दरो दीवार पर धूप में गर्मी और हिद्दत पैदा हो जाए, तो यूं समझ लीजिए कि फिर चाश के बाद, इशराक के बाद में चाश का वक्त हो गया, उसमें चाश को पढ़ लिया जाए। अब उसके बाद हमने पहले भी अर्ज किया, अब सूरज तुलू हुआ, सूरज तुलू होने के बाद ज़हवे कुबरा, सूरज के निस्फ नहार पर आने से पहले का जितना वक्त है उसमें आप कोई नमाज जो है आपके जिम्मे अगर कज़ा हो या कज़ा उमरी पढ़ना चाहते हैं या नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, तो ज़हवे कुबरा से पहले पहले तक वो नमाज जो है वो अदा कर लिया जाए। उसी वक्त में ज़हवे कुबरा में जिस वक्त सूरज बिल्कुल सर पर आ जाए, अब सूरज सर पर आने के बाद में न नफिल होंगे, न सजदा होगा, न उस वक्त में तो तिलावत को भी उलमा ने फरमाया बेहतर नहीं है, उसमें कोई नमाज भी नहीं होगी। जब सूरज बिल्कुल सर पर खड़ा हो जाए उस वक्त कोई नमाज नहीं होगी। अब क्या होगा, सूरज जब बतदरीज जानिब मगरिब बढ़े तो आप देखें कि मशरिक की जानिब साया पड़ना शुरू होता है। अब ये सूरज जब ढल गया तो ढलने के बाद अब जोहर का वक्त शुरू हो गया। अब जोहर का वक्त हनफी मजहब में कहां तक रहता है, तो आपको एक तखमीना मैं बताता हूं। ये देखिए, मसलन आपने एक पीली गाड़ी और ये कहीं से टेढ़ी ना हो, बिल्कुल इसको सीधा गाड़ी,
सीधा गाड़ने के बाद में अब ये सूरज आपके सर पर आ गया। बिल्कुल जब निस्फ नहार पर हो, उस साये पर आप निशान लगा दें जो बिल्कुल छोटा होगा, इसके कदमों में उस पर निशान लगा दीजिए। मसलन इसका साया 1 इंच है, फर्ज कर लें आप। अब उसके बाद क्या होगा, बतदरीज सूरज जब मगरिब की जानिब बढ़ेगा तो इधर साया पड़ना शुरू हो जाएगा। 1 इंच जो पहले जमीन में साया था, जिसको कहते हैं हमारी जबान में साये असल, यानी उसका असल साया जब सूरज निस्फ नहार पर असल साये को मिन्हा कर, इसको मिन्हा करने के बाद में अब इस तीली को इस तरीके से नापिए और इसको दोहरा करने के बाद वहां निशान लगा दें। तो ये साया जब तक इस तीली के साये से दोगुना नहीं होगा, उससे पहले का तमाम वक्त जो है वो हमारे इमाम आजम के नजदीक जोहर का वक्त होगा। क्या मतलब हुआ कि जब तक असर का वक्त शुरू न हो जाए, उससे पहले का जितना वक्त है वो सब जोहर का वक्त है। जैसे आजकल आप देखिए कि 4 बजकर कुछ मिनट के बाद असर का वक्त शुरू होता है, तो 4 बज के कुछ मिनट पे जहां असर का वक्त शुरू हो, तो उससे पहले का जितना दौरानिया है जवाल ज़हवे कुबरा के बाद, ये सब का सब जोहर का वक्त है। लिहाजा ये कि 3 बज जाए तो नमाज कज़ा हो गई, ऐसा नहीं, बल्कि अगर आपके जहन में ये जोहर का वक्त रहा और आप कैलेंडर को बार बार देखते रहिए, आपको मालूम होगा कि कौन सा वक्त असर का है। असर के शुरू होने से पहले जोहर का वक्त बाकी है, नमाज कज़ा नहीं होगी, बिल्कुल कज़ा नहीं होगी ता वक्त के असर का वक्त शुरू ना हो जाए। ये मुख्तसर तारीफ जोहर के वक्त की है। अब आइए, जैसे मैंने कहा कि यहां निशान लगा दें आप, जहां उसका साया डबल है वहां लकीर खींच दें। अब इस लकीर के खींचने के बाद गुरूब आफताब तक असर की नमाज का वक्त है। जब तक आफताब गुरूब ना हो जाए उस वक्त असर की नमाज का वक्त है। लेकिन इसमें असर की नमाज असल वक्त में अदा करना, कि जिसको हम कहें कि सही वक्त में हमने असर की नमाज अदा की, सूरज गुरूब होने से 20 मिनट पहले तक अगर आप असर की नमाज से फारिग हो गए तो आपकी असर दुरुस्त हो गई। अब सूरज गुरूब होने में 20 मिनट से जितना वक्फा कम होता जाएगा नमाज मकरू होगी, यहां तक कि अदा तो हो जाएगी। सूरज गुरूब होने से 2-4 मिनट पहले तक भी अगर आपने असर पढ़ ली तो असर अदा हो जाएगी, मगर मकरूए तहरीमी के साथ, यानी कराहत के साथ। लेकिन इस कराहत का माना वाजिबुल इयादा नहीं, यानी ये कि ये फेल मकरू है, नमाज अदा हो जाएगी। तो सही नमाज का वक्त क्या है, गुरूब आफताब से पहले 20 मिनट, इससे पहले का जितना वक्त है ये नमाज असर का असली वक्त है, और जितना बढ़ेगा नमाज मकरू होगी। और यहां तक कि सूरज गुरूब होने तक अदा तो हो जाएगी मगर मकरूए तहरीमी के साथ। अब आइए, मगरिब का वक्त, जब सूरज बिल्कुल गुरूब हो जाए तो गुरूब होने के फौरन बाद 2-3 मिनट का वक्फा एहतियात, उसके बाद अजान हो जाए। अजान के बाद में हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक अजान और मगरिब की नमाज में फासला नहीं होना चाहिए। ये बाज हजरात को आपने देखा अरब में खुसूसियत के साथ, जब अजान हो तो अजान होने के बाद सारे हजरात 2 रकत नमाज नफल पढ़ते। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक ये मामला जो है मनसूख है। एक आध दफे हुजूर ने पढ़ा और उसके बाद इससे तर्क फरमा दिया, इसलिए अब मगरिब से पहले सुन्नत या नवाफिल कुछ भी अदा नहीं होंगे, बल्कि बगैर किसी वक्फे और ताखीर के मगरिब की अजान के फौरन बाद नमाज जो है वो अदा कर ली जाए, यही बेहतर वक्त है। अब आइए कि ये मगरिब का वक्त जो है वो कब तक रहता है। उमूमन आध घंटा अगर मगरिब का गुजर जाए, इसमें लोगों को शुबा होता है कि मगरिब की नमाज जो है वो कज़ा हो गई। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने अर्ज किया, सुबह सादिक से तुलू का वक्त हर मौसम में 1 घंटा 18 मिनट तो रहता है, और 18 मिनट से बढ़कर 1 घंटा 35 मिनट हो जाता है। इसी तरीके से मगरिब के गुरूब होने का इशा का जो वक्त है हर मौसम में 1 घंटा 18 मिनट तो जरूर होता है।
اور اس کے بعد बतदरीज बढ़ने के बाद ये 1 घंटा 35 मिनट हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा मगरिब का वक्त तो गुरूब के बाद 1 घंटा 35 मिनट और कम से कम 1 घंटा 18 मिनट होता है। तो अब अगर खुदा ना खास्ता आप मगरिब नहीं पढ़ पाए, और ऐसा कराची में कई मौके अब सफर कर रहे हैं, बेइंतहा रश है, गाड़ी खड़ी करके कहीं नहीं पढ़ पाते, या और कुछ अवारिस हैं, तो आप अगर घर पहुंचे या अपने इलाके में पहुंच गए, मगरिब के बाद 8 घंटा गुजर गया, तो मगरिब का जो गुरूब होने का वक्त है 1 घंटे 18 मिनट के अंदर तो हर मौसम में मगरिब की नमाज यानी सही अदा हो जाएगी, कज़ा नहीं होगी। जैसे फजर और गुरूब में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 35 मिनट, कम से कम 1 घंटा 18 मिनट, बिल्कुल वही टाइम मगरिब और इशा का भी होगा। आज जैसे जितना दौरानिया सूरज के निकलने का है, बिल्कुल वही वक्त आज रात में सूरज गुरूब होने के बाद इशा के वक्त का भी वही वक्त होगा। तो इल्मे तौकीद के माहिरीन जब वक्त निकालते हैं तो अब वो मगरिब से इशा का वक्त क्या करेंगे, उसी को फेर देते। आज सूरज निकलने के बाद सुबह सादिक के बाद सूरज कितने घंटे कितने मिनट में लिखा, इसी को रात में दोहरा दें कि इतना घंटे इतने मिनट में इशा का वक्त शुरू हो जाएगा। अलबत्ता असर का वक्त जो है, असर का वक्त कम से कम 1 घंटे 35 मिनट हर मौसम में होता है, हर मौसम। और ज्यादा से ज्यादा असर का वक्त जो है वो 2 घंटे 6 मिनट से ज्यादा नहीं होता। अब ये मौसम की बात और अपने अपने मुल्क का जोग्राफिया है। ये जो हम जिस जमीन पर बैठे हैं ये हमने इल्मे तौकीद के मुताबिक ये उसका हिसाब बताया। अब चलिए इशा का वक्त शुरू हो गया। इशा का वक्त शुरू होने के बाद इशा का वक्त कब तक है? अब 12 बज जाए तो लोग नमाज नहीं पढ़ते कि कल कज़ा पढ़ लेंगे, नहीं, बल्कि अब तक भी इशा का वक्त मौजूद है। अब देखिए इसके मौजूदगी पर एक सही हदीस में यूं बयान किया गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर शाक न होता तो मैं अपनी उम्मत को ये इरशाद फरमाता कि तुम इशा का वक्त जो है वो आखिरी वक्त में पढ़ो, यानी जिस वक्त हम सहरी खाते हैं उस वक्त इशा की नमाज पढ़ो। लेकिन मैंने देखा कि तुम पे शाक है, तुम नहीं पढ़ पाओगे, तो इसलिए हुजूर ने अव्वल वक्त में पढ़ने को बेहतर किया। मगर किसके लिए बेहतर है कि अव्वल वक्त में इशा पढ़कर सो जाए ताकि उसका जल्दी नमाज पढ़ना फजर की नमाज में उठने में माविन और मददगार साबित हो। ये इसलिए है ताकि सुबह आराम से उठ जाए। अब आप बताइए कितना ही नींद करने वाला आदमी इशा के फौरन बाद अगर सो जाए, सोने के बाद कितने इत्मीनान से नींद करके फजर की नमाज में उठकर और अपनी नमाज फजर जो है उसको बचा सकता है। लेकिन मैं कल बात है, आजकल आप देखिए कि इशा की नमाज के बाद लोगों का हाल, साहब घंटों बैठे होते। हैरत तो यह है कि हमारे यहाँ खारा दर और मीठा दर में तो इतनी सहूलत है कि सहरी तक भी लोग चबूतरों पे आपको बैठे हुए नजर आएंगे। पूरा रात जो है वो अपनी जाया करते हैं, पूरी रात खराब करते हैं आपस में गुफ्तगू और आपस में जनाब मामला और मसाइल में। नतीजतन ये होता है फजर चली जाती या कम से कम जमात चली जाती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। नमाज फजर की हिफाजत का बेहतरीन तरीका यही कि इशा की नमाज पढ़ें और पढ़ने के बाद सो जाएं, अपने आप को आदी बनाने। इल्ला माशाअल्लाह जिनकी कोई शरी मसरूफियात हैं, जिनके और मामलात हैं, तो जाहिर है कि उनका हाल फिर उनके मुताबिक है। ये आम बात हमने कही। तो अब ये वक्त जो है आजकल जिसमें आप देखते हैं सहरी बंद करने का वक्त, जो सहरी बंद करने का वक्त है, उस वक्त तक भी कोई शख्स इशा की नमाज अगर पढ़ ले तो ये इशा की नमाज उसकी कज़ा नहीं होगी बल्कि अदा हो जाएगी। ये वो 5 वक्त की मुख्तसर तारीख, और इसके अलावा हमारी कुतुब फिक़्ह में दीगर बहसें मौजूद। अब आइए इसके अलावा औक़ात से मुतालिक मजीद मालूमात, ताकि उसका भी हमें वास्ता पड़ता है और जरूरत पड़ती। फजर में जब अजान हो जाए या वक्त शुरू हो जाए, वक्त शुरू होने के बाद सुबह सादिक से तुलू आफताब तक सिर्फ सुन्नतें 2 और 2 फर्ज, इसके अलावा नवाफिल वगैरह कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। कब? जबकि सुबह का वक्त शुरू हो जाए, यहां तक कि कोई साहब फजर की नमाज में आए,
वुजू करने के बाद तहियतुल मस्जिद भी पढ़ना मना, और तहियतुल वुदू भी पढ़ना मना है कि वो वक्त अब नफल का नहीं रहा, सिर्फ उनमें यही दो नमाजें पढ़ी जाएंगी, नमाज सुन्नत जो फजर की हैं और गोया फर्ज। अलबत्ता अगर आपकी इशा की नमाज चली गई, आंख लग गई, फजर में आंख खुली, तो इशा के जो फर्ज और वितर हैं वो अलबत्ता उन वक्त में कजा करना जायज है। इसी तरीके से अगर अजान हो गई और आप देखें कि आध घंटा जमात में मौजूद, अगर आप अपनी पिछली जिंदगी की कज़ाए उमरी अगर पढ़ना चाहते हो तो उस वक्त में वो पढ़ लिया जाए, इसलिए कि वितर वाजिब है और जो नमाज कज़ा हैं वो फर्ज हैं। तो नफल और दीगर नमाज तो नहीं होगी, क्योंकि सुन्नत एक ही सुन्नत है और कोई सुन्नत नहीं, तो उन नमाजों का इन औकात में पढ़ना जायज है। इसी तरीके से सूरज जब बिल्कुल सर पर आ जाए उस वक्त भी कोई नमाज नहीं होगी। अलबत्ता जनाजा अगर आ जाए और तैयार है, लोग इंतजार के लिए भी तैयार नहीं, ऐन निस्फ नहार में अगर जनाजा पढ़ा दिया जाए, सिर्फ इसका उलमा ने इस्तिस्ना रखा। इसी तरह सूरज निकलते वक्त भी कोई नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर कोई आदमी फजर की नमाज उसने नियत बांध ली, एक रकत उसने सूरज तुलू होने से पहले पढ़ी, अब सूरज तुलू हो गया तो नमाज तोड़ेगा नहीं, बल्कि सूरज तुलू होने के बाद में और मुकम्मल जब सूरज तुलू हो जाए 20 मिनट का वक्फा, उसमें अपनी वो नमाज लौटाएगा कि जो एक रकत तो पढ़ी गई सूरज तुलू से पहले, एक रकत पढ़ी गई सूरज तुलू होने के बाद, इस नमाज को वो फजर में लौटाएगा। लेकिन इसी का मद्दे मुकाबिल अगर आप देखें कि नमाज असर किसी की रह गई और उसने 2 रकत नमाज पढ़ी सूरज गुरूब होने से पहले और 2 रकत हुई सूरज गुरूब होने के बाद, तो हमारे फुक़हा का फतवा यह है कि असर नहीं लौटाएगा, असर नहीं लौटाएगा, लेकिन फजर लौटाएगा। और इस पर दलील हमारे फुक़हा अहनाफ की यह है कि जैसे उसने एक रकत तो तुलू से पहले पढ़ी और एक रकत पढ़ी तुलू के बाद, तो तुलू के फौरन बाद चूंकि नमाज का कोई वक्त नहीं, इसलिए उस नमाज को लौटाएगा। अच्छा, अब चूंकि असर उसने पढ़ी तो असर के बाद 2 रकत पढ़ी गुरूब आफताब से पहले और 2 पढ़ी गुरूब आफताब के बाद। अब ये देखिए, गुरूब आफताब के बाद नमाज का वक्त तो है, ये अलग बात है कि मगरिब का वक्त है, इसलिए वो नमाज नहीं लौटाएगा, लेकिन नमाज फजर जो है ये नमाज लौटाएगा। इसी तरीके से जोहर की अगरचे आपने सुन्नतें पढ़ ली, बेहतर तो ये कि सुन्नतें पढ़ने से पहले पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ ली, जोहर के बाद और जोहर से पहले बशरत के वक्त हो जाए, कज़ा नमाजें जो आपकी उम्र की हैं उनको पढ़ा जा सकता है। इसी तरीके से असर की नमाज के बाद अगर आपके पास वक्त है या आप घर में हैं, तो असर की नमाज के बाद भी कज़ा नमाज जो आपके जिम्मे फर्ज है वो भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन गुरूब आफताब को उसमें ख्याल था कि ऐन उस वक्त में वो नमाजें ना पढ़ी जाएं। तो ये वो औकात हैं कि अगर आपके जहन में रहे तो इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत ज्यादा माविन और मददगार होंगे। और एक बात आप सुन लीजिए, आजकल आप जानते हैं कि घड़ी एक जिंदगी की जरूरत बन गई। जो नमाजी हजरात हैं वो घड़ी भी अपने साथ जरूर रखें और तुलू और गुरूब का कैलेंडर लेकर अपने घर में लगा लें, उसको आवेजा करें और हर 2-3 दिन के बाद औकात पर नजर रखें कि जो आप पढ़ रहे हैं, मसला उम्मन ज्यादातर लोग मेरी मालूमात के मुताबिक फजर की नमाज घर में पढ़ते हैं, दूर दराज रहने वाले या मस्जिद हैं तो दूर हैं, उनको इसमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो तुलू आफताब से पहले नमाज को पढ़ लें। ये वक्त से मुतालिक मालूमात हैं, अगरचे इसमें तफसील तो बहुत ज्यादा है, देखिए कागज, हाँ, और दूसरे कागज भी है, तफसील तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जाहिर है कि वक्त का तकाजा यही है कि मैं इसी पर इक्तिफा करूं ताकि आपके जो दूसरे सवालात मेरे पास मौसूल हुए मैं उनके जवाबात आपको दे सकूं। किसी साहब ने पूछा, अब ये सवाल यहां करने का नहीं कि साहब हिप्नोटिज्म की शरई हैसियत क्या है। ये असल में बाज उलूम हैं जिसको मिस्मेरिज्म या हिप्नोटिज्म कहते हैं। मैंने जहां तक इसको पढ़ा एक नजरबंदी का किस्म का ये कोई अमल है, या बाद मुहक्किकीन की जो मैंने किताबें पढ़ी तो उसमें वो पढ़ते हैं कि मकनातीसी एक कुव्वत है। मिसाल के तौर पर मैंने जहां तक इसका मुतालिया किया, कहते हैं कि हर आदमी में एक कुव्वत मख्फी है और उसको उजागर करने का तरीका क्या है,
उसके माहिरीन ने लिखा कि दीवार पर कोई दायरे बना दिया या 2-3 ऐसे काले सिया, और उसमें एक छोटा सा सिया दायरा बना लिया जाए और उसको गौर से इस तरीके से देखा जाए और उसका दौरानिया बढ़ाते जाइए। आज अगर 5 मिनट है तो कल 5.5, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 6.5, करते करते आदमी घंटों उसका देखने का आदी हो जाए तो कहते हैं, ये उनका कहना है, मजहब में तो इसका कोई जिक्र नहीं, उनका कहना है कि फिर आदमी में एक ऐसी कुव्वत डेवलप हो जाती है कि किसी आदमी को भी गौर से देखे वो उसका मुती फरमा बरदार हो जाता है। जब उसको गौर से देखने लग जाए, जो उससे मांगे वो जनाब उससे हासिल कर लेता। जैसे आजकल आपने देखा कि लोग आते हैं, रे भाई 1000 का खुल्ला दीजिए, 1000 का नोट आपको दिया, खुल्ला ले लिया। अब बाद में घर जाकर देखा, पता चला कि नोट ही नहीं हो, कोई कागज आपको जो है वो उन्होंने पकड़ा दिया। इसी तरह घर में आ जाते हैं इल्म जफर के जानने वाले, खवातीन से कहते हैं भाई लाओ, हमारे पास ऐसा इल्म है कि अगर तुम्हारे पास 4 सोने के कड़े हैं तो 8 हो जाएं। खवातीन लालची, उन्होंने कहा चलो ये 4 ही बहुत मेहनत के बाद बना तो 8 अगर मिल जाए तो क्या। वो बज़ाहिर उनके सामने 8 कड़े बनाकर चला जाएगा, लेकिन जब डब्बा खोला पता चला कि वो 4 भी नहीं। तो ये आदमी में एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत है कि जिससे किसी आदमी को मुसख्खर किया जा सकता है। ये मुहक्किकीन का मिस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म के बारे में ये उनकी राय है, ये उनकी राय मैंने बता दी आपको। मेरी राय ये है कि ये सारी चीजें लग़वियात और बिल्कुल बेकार हैं। इसमें अगर आप पढ़कर 2-4 बरस अगर आपने जाया कर दिए तो जो बंदर रोड पे पागल घूमते हैं उनमें से एक का इजाफा और हो जाए। इसलिए मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल इन चक्करों में आप मत पड़िएगा। और फिर मैंने माहिरीन की राय ये भी पढ़ी कि ऐसा करने वाले लोग अंधे भी हो गए, आंखें भी उनकी चली गई, जिनकी आंख में कुव्वत नहीं वो बीनाई से भी महरूम हो गए। लिहाजा मिस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, ये किसी किस्म के ऐसे चक्कर में आप मत पड़िएगा। जहां तक मुझसे मुमकिन हो मैंने इन किताबों का मुताला किया, लेकिन मैंने इसमें कोई खैर नहीं पाया, इसलिए आपको भी मैं बचने का मशवरा देता हूं। बैराकी साहब ने पूछा कि मुश्त जनी से रोजा टूट जाएगा? बिल्कुल रोजा टूट जाएगा। मेरी शादी को 11 साल हो गए, एक बेटा हुआ लेकिन उसका भी इंतकाल हो गया। डॉक्टर ट्यूब टेस्ट बेबी का मशवरा दे रहे हैं, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। बताइए कि शरीयत में इससे मुतालिक क्या मामला। ये आप जानते हैं कि एक नई तहकीक सामने आई, ट्यूब टेस्ट बेबी। इसका फलसफा कुछ यूं है कि औरत के रहम में आदतन ऐसे अज्जा दाखिल नहीं होते कि जिससे हमल करार पाए, तो वो क्या करते हैं कि मर्द का मादा तौलीद निकाल कर एक हिकमत से औरत के रहम में डाल दिया जाता है। औरत के रहम में डालने के बाद उसको अपनी हिकमत से उसको तरक्की और उसको डेवलप किया जाता है। इस तरीके से वो औरत हामला हो जाती है और वाकईतन उसके यहाँ बच्चा पैदा होता है। इससे इनकार नहीं किया जाता। इस पर हमने पूरा मुताला किया, ये ऐसे ही कहीं लिख नहीं दिया गया, बल्कि ये फिल वाक़ई हकीकत है। अब आइए इसमें कलाम। हुआ ये कि इसने एक तो इस बुराई को ईजाद किया कि हमने अमेरिका, बरतानिया वगैरह में देखा और वहां के तहकीकी इदारों से भी राब्ता किया। उन्होंने ये बताया कि इसमें ये तक हो गया कि जैसे एक साहब को औलाद की जरूरत है, उनकी बीवी औलाद का बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। भाई सारा मॉडर्न निजाम है कि कौन हमल का बोझ बर्दाश्त करे। तो हमारी बेचारी देसी औरतें हैं कि जिनके 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये तो हमारा एक माहौल और माशरा। उनका साहब ये वजन कौन उठाएगा। अब क्या करते हैं ये साहब, जिनको बच्चे की जरूरत है, ये बतौरे किराया अपना नुत्फा किसी औरत में डाल देते। अब वो औरत इनके नुत्फे को पालकर बच्चा जन्ने के बाद बच्चा इनके हवाले कर देती है और ये उसको $5,000 या $10,000 का नजराना दे देते हैं। यूं किराए का बच्चा पैदा होता है। समझिए ये सिलसिला वहां तकरीबन आम। इसमें हमने जब तहकीक की और माहिरीन से जब पूछा तो इसका जो अमल है टेस्ट ट्यूब बेबी का, इसके माहिरीन बताते हैं कि औरत को भी इसमें बहुत बड़ा खतरा, यानी ये निजाम अगर खुदा न खासा नाकाम हो गया या औरत उसको झेलने में बर्दाश्त नहीं करे, वो अद्वियात से अगर उसको रिएक्शन हो गया या उसने बर्दाश्त नहीं किया, तो माहिरीन की एक राय ये है कि औरत के अंधे होने का भी खतरा है। इसमें अंधे होने का भी खतरा है। अब आइए इसमें दरमियानी रास्ता क्या है, जिसको हमारे उलमा ने लिखा और आप हैरान होंगे। हमारे एक आलिम दीन ने एक अंग्रेजों की महफिल में जब इसे बयान किया तो एक अंग्रेज इस्लाम ले आया।
ایک انگریز اسلام لے آئے, اس نے بھرے مجمع میں کہا کہ صاحب ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو معاملہ ہے یہ کیا؟ تو اچھا اس میں جائز کام کیا ہے؟ میاں بیوی جن کا نکاح ہو گیا, اور سے سنیے معاملہ بڑا حساس, بلکہ میں تو سمجھ یہاں پوچھنا ہی چاہیے, نہ پوچھنا چاہیے تھا, جو عام مسائل ہیں انہی کو پوچھا جاتا تو شاید زیادہ فائدہ ہوتا. اچھا دیکھیے آپ, میاں بیوی جو منقوہ نکاح میں دونوں کا ایک دوسرے سے ملنا جائز حلال, اس شوہر کا نطفہ نکال کر کسی حکمت سے اس کی جو منقوہ بیوی ہے اس میں منتقل کر دیا جائے, اس کو علماء نے جائز لکھا. لیکن یہ بیوی, اگر یہ مرد فرض کیجیے الف, اگر اس کے نطفے میں اولاد کے پیدائش کی صلاحیت نہیں, بعض اجزاء ایسے ہیں جو اس میں ہوتے نہیں, اب یہ عورت کو اس کی اجازت نہیں کہ اب اس کو بچے کی خواہش ہے, کسی تیسرے مرد کا نطفہ اگر اس میں ڈالا جائے یہ شرعن جائز نہیں ہوگا اور وہ اس کی اولاد بھی قرار نہیں پائے گا. تو کوئی شوہر اپنا نطفہ اپنی بیوی کے رحم میں اس حکمت سے, جس کو ٹیسٹ ٹیوب کہتے ہیں, اس سے منتقل کر دے تو یہ اولاد اس کی جائز ہوگی. آج سے 300-350 برس پہلے ہمارے اکابر علماء نے یہ لکھ دیا تھا کہ شوہر کا نطفہ کسی حکمت سے عورت کے رحم میں اگر منتقل کر دیا جائے تو وہ اسی کا بیٹا ہوگا, ترکہ پائے گا اور اس کا وہ سگا بیٹا کہلائے گا, اور اس میں حرمت کے سارے مسائل ہوں گے, رضاعت کے سارے مسائل پیدا ہوں گے. اس کو جب انگریز نے دیکھا کہ جس پر ہم نے تحقیق کی اور علماء نے یہ مسئلہ 300 برس پہلے لکھ دیا, اس سے لگتا ہے کہ اسلام سے سچا مذہب کوئی اور نہیں ہو سکتا. وہ لندن کی بات ہے, برطانیہ کی, اور اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا ثبوت بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ کیسے اسلام کیا وغیرہ. یہ ہمارا اس وقت عنوان نہیں. اب آپ نے اس مسئلے کی تہ کو سمجھ لیا, اگر ایسا ہو تو یہ خطرات بھی میں نے آپ کو بتا دیے, لیکن اسی شوہر کا نطفہ اس کی بیوی میں منتقل کر دیا جائے یہ اولاد جائز ہوگی. مسئلہ میں نے بتا دیا اور جو خطرات تھے وہ بھی بتا دیے میں نے. اب آپ کی مرضی, دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.